Dear students, welcome back to my sixth video on correlation. We have already seen in the previous videos, we have already seen scatter diagram method, Carl Pearson method. In detail, we have already seen Carl Pearson. Under Carl Pearson, we have seen that how the coefficient of correlation under Carl Pearson method we are computing. There are three different methods which I have told you. First one is direct method. Second one is assume mean method, and actual mean method. These are the three methods which we have seen under this Carl Pearson coefficient of correlation, right? One more, we have seen how we have to compute the Carl Pearson of coefficient of correlation in case of grouped data. In case of group data, that is known as when the data is being given in two-way classification. जब टू वे क्लासिफिकेशन दिया रहता है तब हम कैसे कंप्यूट करें. These all things we have seen in these videos. Have a look on these videos, then please proceed further for the present video. So in this video we are going to see the fourth one, known as rank coefficient of correlation. Though there are various methods of correlation, the most popular one is called Pearson's coefficient of correlation. In this video we are going to see rank coefficient of correlation. Let us start with the rank coefficient of correlation, fourth one, right? I'm just writing it down. Rank coefficient of correlation. Rank coefficient of correlation. This method, it was developed by British psychologist. This method was developed by British psychologist, British psychologist Charles. His name is Charles Edward Spearman. That is why this method is also known as Spearman's rank correlation. Popularly, it is also known as Spearman's rank correlation or simply rank correlation, right? And this was being introduced by him in the year 1904. In the year 1904. Generally, the method, the calculations which we have seen in case of Carl Pearson coefficient of correlation, it is applicable only when we are being provided with quantitative data. Means क्या है, जब quantitative data दिया रहता है, तब हम क्या कर सकते हैं, we can compute correlation using Carl Pearson. लेकिन जब qualitative figures are given, या qualitative values are given, at that time it will be difficult for us to find out the Carl Pearson coefficient of correlation. तो मतलब क्या है, जब qualitative data दिया रहता है हम Carl Pearson coefficient of correlation नहीं निकाल सकते. तो in that situations what we have to do is we can make use of this Spearman's rank correlation. ये method हम use कर सकते हैं, right? So so generally you can see that there may be variables जो values है in case if it is given like qualitative figure values are being given like intelligence. हम क्या नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, बट यस वी कैन मेजर द IQ who is better. For example, A and B, we are being assigned some questions to them, and accordingly we are giving them rank that he is first, he is second. So such things we can do using this rank coefficient of correlation. Means what, rank correlation के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. For example, in take example of UTs, there are 8 UTs, isn't it? First, Andaman and Nicobar Islands like Chandigarh, Delhi, Puducherry. Likewise, many 8 number of UTs are there. In case if I am being asked to arrange this on the basis of beauty, so that ranking I may give first rank to this, second rank, third rank. Likewise, I can give, but a quantitative measurement I cannot do. So in that situation, this rank coefficient of correlation is useful. ठीक है, तो therefore rank coefficient of correlation is otherwise known as Spearman's rank correlation. It is otherwise known as Spearman's rank correlation, right? I'm sure that you're clear with this concept. What is Spearman's rank correlation? Okay. Now let us proceed further to how हम कैसे rank coefficient of correlation निकालेंगे, ठीक है? So let us see how we can find out the rank correlation coefficient. कैलकुलेशंस हम देखेंगे कि विच व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, राइट? जैसे हमने कार्ल पियर्सन में देखा था, देयर आर डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, देन एज्यूम मीन मेथड. व्हाटएवर द मेथड यू आर यूजिंग, आपको आंसर सेम मिलेगा. वहां पे आपने वो देखा, द फॉर्मूला वाज रिजिड, बट आई हैव
टोल्ड यू, हर वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि कौन सा मेथड कब यूज करेंगे आप, राइट लेकिन क्या है, देयर मे बी कंफ्यूजन कि दिस मेथड दैट, बट इन केस ऑफ रैंक कॉलेशन देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, there is no such type of concept which we have seen in case of coefficient of correlation. So in case of Spearman's rank correlation, we are going to see how it is being defined, right? So it is being defined as the Spearman's rank correlation is being written as capital R. हमने coefficient क्या देखा था? It is being written as small r, right? इस तरह लिखा था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इन दिस केस Spearman's rank correlation is being denoted as capital R, right? Okay, I'm deleting this R is equal to formula is 1 minus 6 summation of d square divided by n cube minus n. These are the values. So you these are the values which is being given. 1, this is number 1. Okay, 1 minus 6 summation of d square divided by n cube minus n. You are aware of what is n. N refers to what? Total number of pairs. Total number of observation only we have seen. यहाँ पे what will be given? Some pairs will be given and that need to be seen. So in case of this this R refers to what? R refers to Spearman's rank correlation coefficient, right? And refers to, what does this D refers to? Difference of rank between paired item. Difference of ranks between paired items. N refers to what? Total number of pairs. कितना जितना pairs दिया है, total number of pairs. So यहाँ पे we are going to be provided with ranks, and we have to find out the difference of ranks. When you're finding out the difference of rank, two pairs will be given like R1, R2. This pairs will be given, or R3. And any number of pairs may be given. You're going to make the find out the difference of ranks between the paired items. How we have to do that, we will see in the sum. Okay, I'll explain you in the sum in detail. Okay. This is total number of pairs. In rank correlation, there are two methods. In that we have seen there are actual method, assume mean method, not in that way, because what happens here is in rank correlation there may be two options which will be available, right? In rank correlation, you can see that we study this rank correlation under two different heads. The first one, let it be capital A, okay? When ranks are given, and B, when ranks are not given. When ranks are given, when ranks are not given. You can see that this method, ये जो method है rank correlation, इसको हम quantitative figures में भी use कर सकते हैं, qualitative figures में use कर. That is the beauty of this rank correlation, right? When ranks are given means यहाँ पे when ranks are given means only ranks are given, and when ranks are not given means there are two options. When ranks are given, when ranks are not given. When ranks are not given मतलब क्या दिया रहेगा? Actual values दिया रहेगा, जैसा हमने कहाँ देखा था, कार्ल पियर्सन में देखा था, ठीक है? When ranks में मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से वैल्यूज दिया रहेगा, रैंक्स दिया रहेगा, पोजीशन दिया रहेगा. तो देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शंस हाउ वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है? द मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट is in case of this is the formula which we are going to use in both the cases. Just a small changes we will make depending upon the values. We will see in that. The first one, let us go for the first one, known as A. When ranks are given. When ranks are given, right? You can see when ranks are given. So when ranks are given means what? Actual ranks are being provided to you. इसमें क्या दिया रहेगा? Actual ranks दिया रहेगा, ठीक है? यहाँ पे actual ranks दिया रहेगा और आपको values निकालना है. So let us see how you have to find out the Spearman's rank correlation. What are the steps you need to follow? First, you have to find out the difference. We have seen in the formula, no, there is one D, there is one D, this one, this form, this D we have to find out, okay? So first you have to find out the D. First you have to just, I'm writing the formula so that it will be clear to you. 1 minus 6 summation of D square divided by n cube minus n. This is the formula, okay? On the base of this formula, I'm just writing down the step. So first you have to find out the D. D means what? You have to find out the difference between rank 1 and rank 2. Yeah, simply I can say D is equal to R1 minus R2. R1 मतलब rank 1, R2 means rank 2. ठीक है?
Move to the second one. Next we have to find out the square. अभी first point में हमने d निकाला, d को क्या करना है, square करना है, ठीक है. जो d का value है that you have to square it, and third you can apply the formula. Which formula? जो हमने लिखा है. Apply the formula, right? Okay, we are applying the formula. We have to apply the formula. Let us go for the first sum. Let us go for the first sum. I'm just pasting the sum. Yeah, let us see. This is the sum which we are going to see now, right? So I've given you the step that you have to find out first d. D is the difference between two ranks. Then you have to square it and you have to apply the formula. Let us see this. I've just prepared the table also. Uh, I'm just reading out the question. The ranking of 10 students in two subjects, accountancy and statistics, are as follows. Two your favorite papers. This is your two favorite papers which I have just noted it down. Uh, right. So okay. Just noted it down. The first page is accountancy and the second one is statistics. These are the ranks which is being given of 10 students. First student, second student, third student, fourth student. Likewise, 10 students are there, and for that, those students, the ranks are being given in account and statistics, right? So let the ranks of accounts be R1 and rank of account be R2. Thus you can write down like this, right? Let the let the ranks in accounts be R1 and let the ranks in stats be R2. ठीक है, you write it completely, पूरा लिखिए आप लोग. Now this is your R1 R2. As I've told you what is the formula. Let me write down the formula first. Right, what is the formula? I've told you, first of all you should write the formula so that you can understand क्या क्या values आपको निकालना है, right? तो ये हो गया summation of d square divided by n cube minus n तो आपको पता है 10 pairs दिया हुआ है, you have to write down 10 10, okay. So R1 is there, R2 is there. What you have to find out? I'm just adding d and d square you have to find out, okay. I'm just inserting one more. Two columns. I'm one for D, one for D square. If you want, you can directly find out the D square also. Okay? I'm just writing it down. R1. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? I'm just making some more space so that I can write down clearly. This is your D. ठीक है? This is your D square. What is the value of D? कैसे निकालेंगे हम? R1 minus R2. ठीक है? अभी 3 minus 6 कितना है? What is 3 minus 6? 3 minus 6 is minus 3 plus 1. 8 minus 9 is minus 1 minus 4 plus 6. Just putting plus 6. This is your plus 8. This is your minus 1 minus 9 plus 1. 9 minus 7 is प्लस टू. तो these are the values. यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली आप इसको भी निकाल सकते हैं, बिना इसको निकाले इसको निकाल सकते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है. दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड आउट डी देन डी स्क्वायर, ओके. सो डी को स्क्वायर करने से 3 3 9 1 1 1 1 4 4 16 6 6 36 8 8 64 1 1 1 9 1 9 9 81 1 1 1 2 2 4. तो ये वैल्यूज आपको मिल गया. यू कैन ऐड वन मोर कॉलम इफ यू वांट. इंसर्ट रोज बिलो. ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको टोटल लिखना है समेशन ऑफ डी स्क्वायर. इसका वैल्यू आपको चाहिए ना, समेशन ऑफ डी स्क्वायर का वैल्यू एज पर द फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना है, 218 214. मैं यहीं पे कर देती हूँ ताकि मुझे स्क्रीन में पूरा दिख जाए. ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग हियर ओनली. आर इज इक्वल टू 1 minus 6. We can write down 6. D square is 214. ठीक है, डिवाइडेड बाई n कितना है, n इज 10. 10 क्यूब माइनस 10 तो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, इसको इंटू करने से कितना आएगा, 1284 एंड इसको 10 क्यूब माइनस 10
10 मतलब 1000 माइनस 10 इज 990, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1.297 विच इज इक्वल टू 0. अच्छा, दिस वैल्यू इज मोर सो इट विल बी माइनस माइनस 0.297. इसको हम कैसे कमेंट करेंगे? द वे वी हैव सीन इन केस ऑफ कॉरिलेशन, नो, जिस तरह से हमने वहां पे कंक्लूजन डाला था, एज आई टोल्ड यू द वैल्यू ऑफ आर शुड वेरी बिटवीन प्लस -1 टू +1, है ना, ये वैल्यूज है. तो ऐसा होने से -1 आने से इट इज परफेक्ट नेगेटिव, +1 आने से परफेक्ट पॉजिटिव, 0 आने से नो कॉरिलेशन, ठीक है. अभी ये माइनस है और कम वैल्यू है, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी नोन एज low, there is low degree of what correlation, negative, ठीक है, low degree of negative correlation between the ranks secured by 10 students. This is why we are going to write, ठीक है ना, between the ranks secured by 10 students, right? नेक्स्ट वन इज, ये आपने देखा व्हेन रैंक्स आर गिवन. अब हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, this is the second option which we are going to see, right? When ranks are not given. अभी in the first one हम ranks are given directly, we have taken the R1 R2 and we have solved the sum, no. अब actual values रहेगा, actual values को आपको क्या करना है, rank देना है, ठीक है. actual values को in case ranks are not given मतलब क्या है, you will be provided with actual values. Now what you have to do on the base of actual, जैसे for example 10 students got some marks, उसमें marks के हिसाब से we are going to put 1 2 3 4 5 6 like that, and accordingly that will be your R1 and that will be your R2. इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है. And the formula will remain the same formula we are going to use. Okay, let us see the sum. This is the sum. This is the sum. Calculate Spearman's coefficient of correlation between marks assigned to 10 students by the judges X and Y. Two judges are there, X and Y, and they have given this some competitive test. In that test, of 10 students have secured this mark. This is the marks which is being given by Judge X to 1 and Judge Y to 1. So these are the marks. This is the actual marks. So this we have to give in sequence. Okay. Better we can put the lowest as 1 and accordingly we can do. उसके हिसाब से हम कर सकते हैं. जैसे for example, you can put the, I'm just making note of this solution. Let the rank given by, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, let the rank given by judge 1, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, I just paste, copy paste, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ let the rank given by judge X be R1 and rank given by judge Y be R2, ठीक है. तो ये हो गया आपका. तो यहाँ पे what I am going to do is I'll be putting, इसको select करके I'll just, okay, this I'll take corner. इसमें I'm going to put insert insert, ठीक है. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट दिस. सो इसका जो रैंक है इसको मैं रख दूंगी R1, इसका जो रैंक है इसको मैं रख दूंगी R2, ठीक है, ये ऐसे ही रहने दीजिए, लेट इट बी लाइक दिस, R1 R2 रख दूंगी, ठीक है. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट, आई विल जस्ट सेंटरेट, लेट इट बी R1, ठीक है, यहाँ पे रखूंगी R2. सो 1 and 2 को थोड़ा आई एम गोइंग टू पुट लाइक, ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस, R1 and R2. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट द रैंक्स, आई एम गोइंग टू गिव द रैंक्स. फॉर एग्जाम्पल
like lowest to highest, छोटा से बड़ा मैं कर दूंगी ascending order में. I'm going to put 1 2 like that. 27 is 25 is 1, 27 is 2, then 37 is 3, 4 is 38, 38 is 4. Ascending order में just you arrange it. Okay, I'm just putting the values up. You are clear with this, I feel. 8 9 6 10 7 5 3 4 2 1. So lowest is 25, then 27, then 37. Likewise you have put the arrangement which you are following the first one, the same you have to follow in the second one. Lower ascending order में put करना, it is much easier when compared to descending order. Okay, so whatever the method you are using for the first one, the same method you have to use for the second one. Better go for putting one as the lowest value, right? So यहाँ पे you are going to put as are for this also the lowest is 25. Likewise you are going to put here 1, right? So we are going to find out whether they are having similar choice or not. According to I'm putting 8 9, then 5, then 4, then 10, then 6 3 2 1 and 7. ठीक है, तो ये हो गया R1 R2. अभी हम लोगों को क्या चाहिए, D चाहिए, D square चाहिए. Let us go for D and D square. Column to the right. D square. ठीक है, D square ये ऊपर आएगा तो मैं इसको ऊपर कर देती हूँ. D square. You have to find out D also. Since the values are less, I'm going to 8 minus 8 is 0. ठीक है, then 9 minus 9 is also 0. Then 6 minus 5 is 1 1 1 1. 10 minus 4 is 6 6 6 36. Then 7 minus 10 is 3 3 3 9. ठीक है, if you want you can add one more column, वो आप कर लीजिए. ठीक है, then 5 minus 6 is 1 1. 3 minus 3 is 0. Then 4 minus 2 is 2 2 4. 1 minus 1 is 0. 2 minus 5 for 7 is 5 5 5 25. ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया. I'm going to put one more column. यहाँ पे you are going to put summation of यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे you are going to put यहाँ पे you are going to put summation of, let me यहाँ पे मैं डालती हूँ summation of yes, now the summation of D square is 76, right? So now we can apply the formula R is equal to 1 minus 6 summation of D square divided by, not whole, divided by n cube minus n, right? Which is equal to 1 minus 6 into D square is 76, and number of pairs is 10. 10 cube minus 10, which is equal to 1 minus 456 divided by 990. If you multiply this, your value will be 456, 56 and 990, and the resultant figure R is equal to 0.54. ठीक है ना, तो ये एवरेज है आपका. तो देयर इज व्हाट, ये आंसर किस में आया, प्लस में आया. तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कैन से दैट द रैंक्स गिवन बाय बोथ द judge 1, judge X as well as judge Y, there is what relationship, there is positive. ठीक है, there is positive correlation between the ranks assigned by judge X and Y. Positive means what, their thinking goes in the same direction. ठीक है, बहुत high नहीं है, बहुत low नहीं है. You can see there is an average. High degree means high degree अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब उनका जो point of view है, it is almost similar, right? But they are thinking in the same manner. There is positive correlation but not too high, right? There is average positive 0.54. Yes, so these are the case when two cases हमने देखा यहाँ पे कि when ranks are given and when ranks are not given. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 or 3 people are getting equal ranks. So वहाँ पे हम क्या करेंगे, what we are going to do in that case. ठीक है, so one more situation here is equal ranks in case of
इक्वल रैंक्स हम क्या करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल रैंक्स। सो एक हमने देखा व्हेन रैंक्स आर गिवन, बहुत सिंपल था। एक्चुअल मतलब रैंक दिया हुआ था, वी हैव ओनली हैव टू सॉल्व द सम। नेक्स्ट में हमने देखा रैंक्स नहीं दिया, एक्चुअल वैल्यू दिया, तो हम लोगों को रैंकिंग करना है, वन एडिशनल वर्क वाज देयर। इन केस ऑफ इक्वल रैंक्स मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दो जन को सेकंड रैंक मिला, दो जन को फर्स्ट रैंक मिला, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोसेस विल बी सेम एंड विल बी गिविंग। इन केस इफ इक्वल रैंक्स आर बीइंग असाइंड, हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गिव देम एवरेज रैंकिंग। हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज रैंकिंग देंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू गिव देम एवरेज रैंकिंग। अगर फॉर एग्जांपल यू कैन सी फोर्थ प्लेस में या फिफ्थ प्लेस में दो का फोर्थ प्लेस में दो जन का सेम वैल्यू है। एट फोर्थ प्लेस टू पीपल आर गेटिंग द सेम, तो फोर प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, दिस इज नोन एज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव एवरेज। इस तरह से वी आर गोइंग टू गिव देम एवरेज रैंक। सो व्हेन इक्वल रैंक्स आर असाइन्ड, ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा है, इन दैट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू ऐड। हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ये चीज को हम ऐड करेंगे। ठीक है, टू द वैल्यू ऑफ व्हाट, टू द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। हमने डी स्क्वायर देखा था, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। इन दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू ऐड एज मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल ओनली वन वैल्यू इज रिपीटेडली यूज, जैसे फॉर एग्जांपल 24 50 स्कोर दो जनों ने किया है, तो 50 दो वैल्यू दो जन ने किया है, या तीन जन ने किया है, या अलग अलग वैल्यूज 50 किसी ने किया है, 70 दो जन ने किया है। इस तरह से अगर अलग अलग वैल्यू होगा, अगर एक बार एक वैल्यू रिपीट हुआ है तो एक बार होगा, दो बार उनसे दो बार होगा। लाइकवाइज यू हैव टू add as many times the values are getting repeated, ranks are being assigned, ठीक है, उस हिसाब से you have to give the ranks, उस तरह से आपको करना है। So when this equal ranks, m refers to what, number of times। जैसे for example 50 marks दो ने स्कोर किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 क्यूब माइनस 2। और एक नंबर आया 70, तीन जन ने स्कोर किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 क्यूब माइनस 3। तो likewise the values will be going। तो now how the formula will become, you can see r is equal to 1 माइनस, देखिए सेम फॉर्मूला है जो हमने देखा था, सेम फॉर्मूला, एन क्यूब माइनस एन। सिर्फ हम क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर से, 6 वाज देयर राइट इन द प्रीवियस फॉर्मूला, 6 सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर था। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ डी स्क्वायर है, देखिए 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर है, इसमें हम ऐड करेंगे 1/12 एम क्यूब माइनस एम। सपोज ये एक वैल्यू ही रिपीट हुआ है, तो एक बार ऐड करेंगे। अगर और एक वैल्यू दो जनों ने लिया, तीन जनों ने लिया, फिर दोबारा ऐड करेंगे। ठीक है, तो एज मेनी टाइम्स दिस वैल्यूज आर गेटिंग रिपीटेड, यू हैव टू ऐड इट, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स। अगर एक वैल्यू है तो एक में हम रुक जाएंगे, दो वैल्यू तो अगेन टू हैव, वी हैव टू ऐड इतना। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सी बहुत ही आसान है ये, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। So the same formula, six summation of d square is already there, you have to add 1/12। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सम, दैट इज इन केस ऑफ इक्वल रैंक्स, राइट। इक्वल रैंक्स का ये जो है, तो दिस वी आर गोइंग टू सी नाउ। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, 6 से समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज एक्स एंड वाई। तो यू कैन सी, देखिए यहाँ पे 75 रिपीट हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, 75 इज गेटिंग रिपीटेड टू टाइम 75, देखिए यहाँ पे और 75 है, नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए 14 इज रिपीटेड थ्री टाइम्स, तो यहाँ पे 1/12 जो है, वी आर गोइंग टू पुट हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स 1/12। यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हुआ, यहाँ पे दूसरा वैल्यू, इसी तरह वन मोर वैल्यू इज देयर, अगेन वी विल ऐड 1/12। तो यहाँ पे 1/12 वी हैव टू ऐड टू टाइम्स। ठीक है, दो बार हम लोगों को ऐड करना है। जस्ट आई विल टेल यू हाउ। देखिए यहाँ पे m is 2, यहाँ पे m is 3। ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हुआ है, यही यहाँ पे दूसरा वैल्यू रिपीट हुआ है। एक वैल्यू 75 है, एक वैल्यू 14 है। 75 रिपीटेड टू टाइम्स, 14 रिपीटेड थ्री टाइम्स। दिस वैल्यू इज योर m एंड दिस वैल्यू इज योर m। ठीक है, तो ये 75 के लिए हम लोगों को 1/12 वो ऐड करना पड़ेगा, और 14 के लिए करना पड़ेगा। तो नाउ हाउ विल योर फॉर्मूला विल बी, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल देती हूँ, डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। ये हो गया, मैंने 75 के लिए कर दिया। अब और एक करूंगी 14 के लिए, बस यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको बंद कर दूंगी। उसी तरह और वैल्यूज होने से दैट विल बी गेटिंग एडेड।
डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n। ठीक है, देखिए कितना सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को ये एक्चुअल वैल्यूज दिया है, you can see this actual values are given, so you have to find out the mm, let me copy this, copy paste। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके जाती हूँ, इसको डिलीट करती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, you will get delete this, I am deleting this, I am deleting। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट R1, जैसे आपने वहां पे निकाला था, मैं यहाँ पे राइट, यहाँ पे एक निकालती हूँ, इंसर्ट कॉलम राइट, इंसर्ट कॉलम राइट। ठीक है, ये हो गया, तो दिस इज x, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट d ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया R1 R2, और हम क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर निकाल देते हैं। ठीक है, d निकालने का जरूरत नहीं है, वी विल फाइंड आउट d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट R1, यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट R2, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट d स्क्वायर। ठीक है, दिस R1 एंड दिस R2 कहाँ लिखेंगे हम, just signify करें तो we are going to put like this, and this is your d square, I'll just put like this। ठीक है, now this is clear, d square मतलब क्या है, R1 minus R2। if you want I'll just write down uh, copy paste R1 minus R2। okay, ठीक है, दिस इज R1 minus R2, यहाँ पे भी छोटा हो गया शायद। ओके, ये हो गया, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू पुट वन मोर, तो यहाँ पे वी हैव टू गिव रैंकिंग। ठीक है, तो रैंकिंग हम कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे I'll just write it down। okay, so the first rank I'm going to give to the lowest value is 59 1। ठीक है, यहाँ पे 62, ये 3, ये 4, और ये जो है 5 और 6 है, 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा 5.5 एंड 5.5। ठीक है, उसके बाद 5 और 6 चला गया, दिस इज योर 7 एंड दिस इज 8। दिस इज हाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ठीक है, फॉर इसके लिए भी वैसे ही करना है, लोअर से करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, ये कितना है 3 4 5, 3 4 5 डिवाइडेड बाय कितना, तीन वैल्यू 3, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 5 चला गया, यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ 8। देखिए इट्स वेरी सिंपल, डी स्क्वायर निकालना, 8 माइनस 1 इज 7, 7 7 49, 7 minus 2 is 5, 5 5 25, 5.5 minus 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2.25, तो ये भी सेम आएगा 2.25। 4 minus 4 आएगा 0, 3 minus 7 is 4, 4 4 16, then 2 minus 6 is 4, 4 4 16, यहाँ पे 7 49। ठीक है, ये हो गया आपको। if you want you can put 0 0, क्योंकि आपको एक पॉइंट में आया है, in order to make it look beautiful you can put 2 zeros। ठीक है, तो यहाँ पे आया आपका summation of d square which is equal to 159.5। as I've told you, you have to add 1 by 12 two times, so let us write the formula। 1 minus, मैं दोबारा लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा है ना पहले का फॉर्मूला, तो I'll just write once again, summation of d square plus 1 by 12 m cube minus m। ठीक है, वन मोर, ये हमने कर दिया 75 के लिए, अब हम कर रहे हैं 14 के लिए, बस इसको बंद कर दो, बाकी सारा सेम है, n क्यूब माइनस n। ठीक है, so r is equal to 1 minus 6, submission of d square कितना है, I'll just put 159.5 plus 1 by 12, तो फर्स्ट जो 75 वैल्यू था वो दो बार रिपीट हुआ था, तो 2 क्यूब माइनस 2। ठीक है,
उसके बाद जो वैल्यू है 14 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो आई एम गोइंग टू पुट 3 क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, इट शुड लुक सिमिलर नो। तो n इज हाउ मच, कितना n था आपके पास, जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 8 n था, तो 8 क्यूब माइनस 8। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यूल बी गेटिंग माइनस 0.929। माइनस 0.929 मतलब क्या, देखिए 929 है, देर इज हाई डिग्री, है ना, हाई डिग्री ऑफ व्हाट कॉरलेशन, नेगेटिव कॉरलेशन। मतलब दोनों का जो रैंकिंग है एकदम अलग अलग है। ठीक है, एकदम नेगेटिव सोच रहे हैं। किसी ने 8th पोजीशन को, किसी ने एकदम 1 पोजीशन दिया, इसका मतलब क्या है, जो थिंकिंग है जजेस का एकदम से ऑपोजिट है। तो देयर इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें एक्स एंड वाई दिया है, तो यू विल राइट एक्स एंड वाई, जैसा क्वेश्चन दिया रहता है वैसे यू हैव टू राइट इट डाउन, राइट। तो दिस इज योर रैंक कॉरलेशन, ये हो गया आपका रैंक कॉरलेशन। So this was your the rank correlation. Now we are going to the last method, that is known as concurrent deviation method. ठीक है, लास्ट हम देखेंगे concurrent deviation method। जितना भी मेथड हमने देखा है ऑफ among all this method is the simplest one। ठीक है, ये मेथड क्या है, बहुत सिंपल मेथड, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड इन कॉरलेशन। यहाँ पे जो करना है, the only thing what we have to do here is we have to find out the direction of change। we have to find out the direction। ठीक है, हम लोग क्या देखना है, डायरेक्शन ऑफ चेंज देखना है, किसका, एक्स का और वाई का। अगर देखिए फॉर एग्जांपल, अभी एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वी आर गोइंग टू पुट प्लस साइन, डिक्रीज हो रहा है तो वी आर पुटिंग माइनस साइन। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू, यू आर गोइंग टू कंपेयर द फर्स्ट वैल्यू विद द सेकंड वैल्यू विद द थर्ड वैल्यू, जैसे 2 3 4 5 है, 8 4 है। ठीक है, इस तरह से अगर वैल्यू दिया गया है, 2 में यू आर नॉट गोइंग टू पुट एनीथिंग, यहाँ पे आप कुछ नहीं पुट करोगे क्योंकि यू डोंट हैव टू कंपेयर। अभी 3 2 से ज्यादा है प्लस करेंगे, 4 3 से ज्यादा है प्लस करेंगे, 5 4 के बाद 5 आया बढ़ गया प्लस करेंगे, उसके बाद कम हुआ माइनस करेंगे। तो ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ चेंज। अब डायरेक्शन ऑफ चेंज व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट फॉर एक्स, यू आर गोइंग टू राइट dx, और जब आप y का निकालोगे तो आप dy निकालोगे। हम यहाँ पे क्या नहीं लिखेंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, किस तरह से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, राइट। तो कंकरेंट डिविएशन कॉरलेशन को हम सिग्निफाई करते हैं आरसी से। दिस इज द फॉर्मूला आरसी। आरसी रिफर्स टू व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन बाय कंकरेंट मेथड। देखिए फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है व्हेन कंपेयर टू द अदर फॉर्मूलाज। प्लस माइनस, बाहर भी प्लस माइनस, अंदर भी प्लस माइनस, विद इन ब्रैकेट 2c माइनस n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, this is the formula 2c minus n divided by n। यहाँ पे what we are going to do is uh, यहाँ पे this is known as concurrent method, correlation using concurrent method। यहाँ पे हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा है, इन केस अगर इसका वैल्यू, अंडर रूट का वैल्यू अगर माइनस में आता है, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एनी माइनस फिगर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इधर माइनस आता है तो दिस माइनस विल मेक इट प्लस, बट द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी माइनस ओनली। ठीक है, सिर्फ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं, अगर माइनस वैल्यू आता है तो इससे मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करने के बाद वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट आंसर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका -4 आया, ठीक है, आप क्या करोगे, अंदर का जो रूट है ये माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस माइनस है, ये माइनस के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे 4। ठीक है, अभी आपने किया 2 आंसर आया, लेकिन अल्टीमेट फिगर आप किस में दिखाओगे, 2 में दिखाओगे। दिस इज कंकरेंट डेविएशन मेथड। ये मेथड जो है ज्यादा यूज नहीं होता है। लेट अस सी द स्टेप्स हाउ टू कंप्यूट द कंकरेंट डेविएशन। ठीक है, किस तरह से निकालना है वो हम देखेंगे अंडर दिस स्टेप्स, कैसे हम निकालेंगे। फर्स्ट क्या करना है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx एंड dy। dx मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ x, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ y। यू आर गोइंग टू कंपेयर द फर्स्ट वैल्यू विद द सेकंड विद द फर्स्ट। में आपको चेंज पता नहीं चलेगा बिकॉज फर्स्ट फिगर इज द फर्स्ट फिगर, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो देन यू विल बी कंपेयरिंग विद द सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आप कंपेयर करोगे। यू आर गोइंग टू पुट प्लस और माइनस, अगर कोई चेंज नहीं है यू आर गोइंग टू पुट जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वैल्यू 2 है, सेकंड वैल्यू भी 2 है, कोई चेंज नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, जीरो करोगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो फर्स्ट
आपको dx और dy निकालना है। तो ये हो गया। तो first you are going to find out the direction of change of x variable and direction of change of y variable. You are going to find out the direction of change of x variable and y variable by putting plus minus और जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। ये आपने कर लिया, ये आपने dx के लिए कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, dx और dy को यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका dx है, dy है, इसमें प्लस दिया है, इसमें माइनस दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट माइनस। लाइकवाइज यू हैव टू राइट डाउन मल्टीप्लाई dx dy, इस तरह से आपको dx dy को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया, आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट dx dy मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द कंकरेंट डेविएशंस कितना है वो निकालना है, c निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय c? c का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। जैसा फॉर एग्जांपल dx dy में आपने dx dy निकाला, ठीक है, dx dy निकाला, उसमें आपने प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह है, तो c विल बी योर 2, क्योंकि ये प्लस 2, ये प्लस और ये प्लस 2 है। या सपोज मान लीजिए 3 है, तो आप क्या लिखोगे, c इज 3। तो c refers to what, number of positive signs। ठीक है, आई एम श्योर दैट यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट सम वी आर गोइंग टू सी नाउ। The sum is concurrent deviation का sum we are going to see। ठीक है, this is the sum। ठीक है, let us see the sum। देख लीजिए, year is given, supply and price is given। ठीक है, तो with this we can do the sum। I'm just copying the sum, copy। ये आपका x है, ये आपका प्राइस y है। ठीक है, इस तरह से आप मान लीजिए, इस तरह से यू कैन डू द सम। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, लेट सप्लाई बी x, ठीक है, एंड लेट प्राइस बी y। इस तरह से यू हैव टू राइट डाउन। तो हम यहाँ में क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट टेक इट। हाँ, तो ये आपका लेट इट बी लाइक दिस। सप्लाई को इफ यू वांट यू कैन पुट x, इसको इफ यू वांट यू कैन पुट y। ठीक है, मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, आप पूरा हटा के, सप्लाई को हटा के लिख सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इसमें भी इंसर्ट कॉलम टू द, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं छोटा कर देती हूँ। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सेकंड हम लोगों को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ x एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ y। ठीक है, ये पहले निकालना है, उसके बाद हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट dx। dx मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ x वेरिएबल। तो उसी तरह यहाँ पे dy मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ y वेरिएबल। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वैल्यू देखो, यू वोंट गेट, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू कंपेयर। तो 140 के साथ यू आर गोइंग टू कंपेयर 150। 140 से कंपेयर करोगे, 154 इज मोर, पुट प्लस, 160 इज मोर, पुट प्लस। अभी 140 कम हो गया 160 से, यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू पुट माइनस, एंड 170 40 से ज्यादा हो गया तो वी विल पुट प्लस। उसी तरह यहाँ पे भी करना है, 180 से 160 कम हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है, और 210 यहाँ पे प्लस। सो वन मोर कॉलम यू हैव टू ऐड। अभी आपने dx निकाल दिया, dy निकाल दिया। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट dx dy। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है dx dy, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस एंड दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, लीव इट ब्लैंक, डैश मत डालिए, बिकॉज माइनस एंड डैश विल बी इक्विवेलेंट, तो इसलिए डैश कुछ भी मत, डोंट पुट एनीथिंग। देन प्लस एंड माइनस इज plus and minus is minus, plus plus is plus, minus plus is minus, plus plus is, अच्छा।
तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, तो प्लस कितना है 2 है, तो यू आर गोइंग टू पुट 2। ठीक है, ये हो गया आपका। तो फॉर्मूला लिखिए, प्लस माइनस। फॉर्मूला लिखते समय यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली, आपको ऐसा ही लिखना है 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, यहाँ पे c कितना है, वेर इसमें c कितना है 2 है, n कितना है, n हम लोग वो कितना लेंगे 4 ही लेंगे, जितना हमने कंपेयर किया उतना ही लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 218 को हमने कंपेयर नहीं किया, इसलिए नंबर ऑफ पेयर्स कंपेयर्ड आएगा, राइट। तो नंबर ऑफ पेयर्स हमने कितना कंपेयर किया, 4 कंपेयर किया, दो कितना वैल्यूज दिए 5, दिस वी आर नॉट गोइंग टू टेक क्योंकि पहला वैल्यू आपके पास नहीं है। ठीक है, सो जस्ट पुट द वैल्यूज, प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस n इज हाउ मच, n इज 4 डिवाइडेड बाई 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कितना आ रहा है, 2 इंटू टू 0, 2 इंटू टू 4 आ रहा है, 4 माइनस 4 इज 0। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 0 मतलब है कि दोनों के बीच में, सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या नहीं है, कोई भी, देर इज नो कॉरलेशन, देर इज नो कॉरलेशन बिटवीन सप्लाई एंड, जीरो आने का मतलब है सप्लाई और प्राइस में कोई को भी कॉरलेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज देयर, ओके। अब I'll give one more sum, you just do it as homework, करके देखिए, ट्राई करिए, आंसर डालिए आप लोग। ठीक है, you just put the answer in the two more questions I am giving, ये दोनों सम्स आप लोग सॉल्व करिए और आंसर्स जो है आप लोग पोस्ट करिए। ठीक है, I just want to see it। ठीक है, ये दोनों ये सम्स जो है होमवर्क है, ये सम्स आपका होमवर्क है। आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज इजियर। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क सम है, आप एक करके देखिए, कंकरेंट डिविजन मेथड जो मैंने आपको बताया है। अभी जो मैंने जो सम दिया है उसमें आपको आंसर 0 आया, तो जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर, टेल मी इन बोथ द क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपको कितना क्वेश्चंस दिए, 1 2 2 क्वेश्चंस दिए हैं, जस्ट फाइंड आउट द आंसर एंड पोस्ट इन द कमेंट। Thank you. I hope that you are clear with this. And now I'll be coming up next with the regression analysis. Thank you.